Hello everyone, this is Mansi Pandit and I have qualified June 2025 NET in English with 99.89 percentile. Before this, I have given two more attempts in December 2023 and December 2024, and in both the attempts, I was not even able to qualify NET. In December 2024 attempt, I had qualified for the third category, which was PhD only, but um, I was not able to qualify net. So first of all, I understand all of your emotions, whatever you are feeling right now. क्योंकि 2 बार से मैं खुद उसी जगह पे थी. I was feeling the same as you guys are feeling right now. The only purpose or motive of this video is to make you guys feel that whatever you are feeling or whatever you are thinking is very valid at this point, because I myself have been in the same place for the last 2 times, or for a year and a half, I would say. So I gave my first attempt in December 2023, which I think I missed by 8 marks. 8 marks. Then I again appeared in a June cycle, which was supposed to be offline. Okay, so I appealed for the June cycle. It was conducted offline, and my exam went well. Then, when I was checking the my responses with the responses that were being told on YouTube, I was getting, I think, around 100 questions right. So according to that, my score would have been 200. So I thought that I would get through this exam, but unfortunately that exam got cancelled. Then I was not able to appear for the online attempt, because meanwhile, between June and August, when the exam was to be conducted, I actually applied for a job as guest faculty in a college. So I got busy with that job and I could not apply or attempt appear for the August attempt. Then I attempted exam in December, and again I missed it by 4 marks exactly. My score was 184 and the qualifying score for net was 188. So could not qualify it. So in last 2 attempts, okay, I was feeling very demotivated after those 2 attempts, because I thought I thought that I did everything I could, okay, or I know everything I should be knowing to be able to get through, but I still didn't go through. So I was just blaming my luck and my stars. I was like, nothing goes right with me, or no matter how much I try, nothing good happens. Okay, but this attempt, the game changing thing was I honestly sat down with myself. So my whatever you are feeling is very valid. इस बार भी I was कहीं ना कहीं रेडी कि अगर मेरा एग्ज़ाम क्लियर नहीं होता है तो आई वॉज रेडी फॉर दिस फीलिंग टू कम बैक अगेन टू मी. सो आई वॉज प्रिपेयर्ड कि मे बी हो सकता है इस बार 2 नंबर से छूट जाए. तो इस फीलिंग से मत डरो, इस फीलिंग से मत भागो, ठीक है. फेस इट, इट्स ओके, इट्स नॉट द एंड ऑफ द लाइफ, इट्स फैमिली टू टेक केयर आफ्टर. उसके बाद भी पीपल आर क्लियरिंग दिस एग्जाम, ओके, एंड सम ऑफ देम आर वर्किंग जॉब्स, ठीक है. सो do not think that you don't have time. Even I myself was working this time when I appeared for this attempt. Okay, I was working as a guest faculty in a government college. So even I did not have time. And honestly, एक बात बोलती हूँ, you have a time crunch. ठीक है. We tend to be more productive with each and every minute. ठीक जाएगा. बट जब आप बिजी होते हो अपने जॉब के साथ या अपने किसी और काम के साथ, आपको पता है जो टाइम आपको ये बीच में मिल रहा है इन चोर्स के, वही टाइम है जो आपके पास है, और आपको उसी टाइम को टू द मैक्स यूटिलाइज करना पड़ेगा. सो डोंट वरी इफ़ यू आर वर्किंग.
डोंट वरी इफ़ यू हैव अ फैमिली टू टेक केयर आफ्टर, ठीक है। आपको पता है कि आप अपना कहाँ पे जुडिशियसली यूज़ कर सकते हैं। हो गया। अब थोड़ा सा शांत हो जाओ, बी काम, ठीक है। नथिंग इज रॉन्ग विथ यू, नथिंग इज रॉन्ग विथ योर लाइफ। यू जस्ट नीड सम टाइम मैनेजमेंट एंड सम strategy to proceed in this exam. So I'll just honestly share whatever I did and what my thought process was very organically, ठीक है। एक बार go through the paper that you gave लास्ट अटेम्प्ट, लाइक वॉट एवर योर लास्ट अटेम्प्ट वॉज। अगर ये जून 2025 का पेपर आपने दिया है तो गो थ्रू दैट पेपर, ठीक है। इफ़ यू हैव योर रिस्पॉन्स शीट, गो थ्रू इट, ठीक है। फिर उस पेपर में से आइडेंटिफाई करो, ठीक है, कि आपका कौन से एरियाज में मार्क्स कट रहे हैं, ठीक है। क्या आपका पेपर 1 का DI रॉन्ग हो गया है, ठीक है। क्या DI के 5 में से आपके 3 या 4 क्वेश्चंस रॉन्ग हो गए, ओके। क्या आपके लॉजिकल रीजनिंग वाले क्वेश्चंस रॉन्ग हो गए, ठीक है, पेपर 1 में। या क्या आपके मैथ्स वाले क्वेश्चन, यूजुअली स्पीड, डिस्टेंस, टाइम, प्रॉफिट लॉस, ये वाले क्वेश्चंस आते हैं, तो क्या वो रॉन्ग हो गए, ठीक है। ये आइडेंटिफाई कर लो कि क्या आपका मैथ्स या DI वाला एरिया रॉन्ग है। उसके अलावा आपके क्या रिसर्च 10 यूनिट्स होते हैं पेपर 1 में, आपके क्या रिसर्च के एरिया वाले में आपके मार्क्स नहीं आ रहे हैं, ठीक है। रिसर्च वाले क्वेश्चन ज़्यादा रॉन्ग हो रहे हैं या एनवायरनमेंट वाले क्वेश्चंस रॉन्ग हो रहे हैं। जिस भी एरिया के आपके क्वेश्चंस रॉन्ग हो रहे हैं आइडेंटिफाई करना, ठीक है। लिखते जाओ जो भी आपके रॉन्ग क्वेश्चंस हैं, ये इस एरिया से, ये इस एरिया से, ये इस एरिया से, ठीक है। अब आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि आपके कौन से एरिया से क्वेश्चंस रॉन्ग हो रहे हैं। उसके बाद क्या करना है आपको। अब देखो, एक तो ये होता है कि आपने उस एरिया को टच ही नहीं किया, ठीक है, बिकॉज ऑफ द फियर कि आपको ये एरिया आता नहीं है, तो इसलिए भी आपका वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकता है, ठीक है। या वो क्वेश्चन आपका इसलिए रॉन्ग होगा क्योंकि वो आप एरिया पढ़ के ही नहीं गए हैं। कई बार ऐसा भी होता है, विच यूजुअली हैपन टू मी मोस्ट ऑफ द टाइम्स, कि मैं वो एरिया तो पढ़ के गई, बट उस एरिया को पढ़ने के बाद भी वो पर्टिकुलर क्वेश्चन मुझसे सॉल्व नहीं हुआ, ठीक है। तो वो आइडेंटिफाई करो कि क्या वो एरिया आपने पढ़ा था, ठीक है। फिर मे बी उस एरिया का कोई पर्टिकुलर सेक्शन या कोई पर्टिकुलर टॉपिक यू माइट हैव ओवरलुक्ड, यू माइट हैव लेफ्ट। जैसे कि इन्वायरमेंट आप पढ़ के गए, ठीक है, इन्वायरमेंट में आपने सारा पढ़ लिया, लैंड पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन सब पढ़ लिया, ठीक है, बायोडाइवर्सिटी, ओके। और बट आप इन्वायरमेंट में जैसे कि प्रोटोकॉल्स नहीं पढ़ के गए, ठीक है, बाय चांस आप प्रोटोकॉल्स नहीं पढ़ के गए। तो अगर आप ओवरऑल पढ़े हैं कोई भी यूनिट, ठीक है, आप पढ़ के गए हैं, बट उस यूनिट में से कोई पर्टिकुलर एरिया आपका छूट गया है, उसमें से क्वेश्चन आया है, तो वो यूनिट में से जो आपके लैगिंग एरियाज है, जो एरियाज आपने कवर नहीं किया, तो वो आइडेंटिफाई करो, ठीक है। एक बार पढ़ लिया है अगर आपने, तो फिर वो वाले एरियाज पढ़ो जो इस लास्ट अटेम्प्ट में आपने नहीं पढ़े या ओवरलुक हो गए। सबसे सिंपल है, कोई रिसोर्स नहीं है, ChatGPT में डाल दो, ठीक है, कि आई वॉन्ट यू टू टेल मी एवरीथिंग UGC नेट ओरिएंटेड ऑन दिस पर्टिकुलर टॉपिक। ChatGPT will give you entire list in a very point wise manner, ठीक है। अपने नीड के हिसाब से पॉइंट में डाल दो, और उसमें उन पॉइंट्स में से भी कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट नहीं समझ आ रहा है, आस्क इट अगेन कि इलैबोरेट, गिव मी एन एग्जाम्पल, ठीक है। ये हो गया, ये कर लो। फिर पेपर 2 विच इज़ माई पेपर वॉज इंग्लिश लिटरेचर, ठीक है। तो इंग्लिश लिटरेचर की बात करें तो सेम चीज़ आपको पेपर 2 में करना है कि कौन से एरिया से क्वेश्चन आ रहे हैं। 100 क्वेश्चन है, आराम से, ज़रूरी नहीं है कि आप एक दिन में ही सब एनालाइज करें, and analyze it according to the time you have, because known authors what they are doing is that they are giving their unknown works. Now I don't think you can do anything about such questions, because it's, you cannot go after unknown works of each and every writer. It would be impossible and that would be a very stupid thing to do. So I won't recommend you to
गो आफ्टर अननोन और लेसर नोन वर्क्स ऑफ एनी ऑथर, ठीक है। जो मेजर वर्क्स है, ठीक है, जिसके बारे में हमेशा से क्वेश्चंस पूछते आ रहे हैं, उन्हीं पे फोकस कीजिए आप, ठीक है। So some questions will obviously be unexpected. You cannot do anything about it. There was another question on Akbar, so experiments of Akbar, ठीक है, on linguistics. So कुछ ऐसे रैंडम क्वेश्चंस आ जाते हैं, वो क्वेश्चंस यू कैन ओवरलुक बिकॉज ट्राई कर लो कि कौन से क्वेश्चंस आपसे नहीं बन रहे। और एक और चीज़ होती है एग्जाम के टाइम पे, वो जो 3 घंटे है, यू आर अंडर सच हाई प्रेशर, समटाइम्स आप हड़बड़ी में अच्छे से क्वेश्चन पढ़ते नहीं हो, कहीं पे नॉट लिखा है तो आप नॉट को ओवरलुक कर देते हो, विच आर नॉट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस पर्टिकुलर वर्क। तो नॉट आपने नहीं पढ़ा, अगर कई बार आप हड़बड़ी में क्वेश्चन आपको आता है तब भी आप गलत सॉल्व कर लेते हो। मेरे साथ भी 2-3 क्वेश्चंस में ऐसा हुआ था लास्ट टाइम। इस बार भी आई थिंक एक पर्टिकुलर क्वेश्चन में आते हुए भी मैंने ऑप्शन गलत सेलेक्ट कर लिया, मैंने 2। और मॉक्स आपको लगाने हैं। मॉक्स लगाने के लिए क्या करना है, किसी भी उसका पास्ट 2 to 3 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स उठा लो, 3 घंटे का टाइम में लगा लो और सॉल्व करो। यू कैन ऑल्सो सॉल्व टॉपिक वाइज मॉक्स, बहुत सारे कोचिंग सेंटर्स के अवेलेबल हैं अपने हिसाब से। या फिर ChatGPT में प्रॉम्प्ट डाल दो कि गिव मी 50 MCQs ऑन दिस टॉपिक, वो आपको दे देगा, ठीक है। तो आप जितने क्वेश्चंस देखते जाओगे ओवर द टाइम, आप क्वेश्चन से उतना फैमिलियर हो पाओगे। जब उस दिन आपको 3 घंटे में बैक टू बैक 150 क्वेश्चंस दिखेंगे, यू वोंट पैनिक, ठीक है। आपके ब्रेन को आदत हो जाएगी क्वेश्चंस रीड करने की, उसके कीवर्ड्स फाइंड करने की और कीवर्ड्स से आंसर ढूंढने की, ठीक है। तो चलो ये हो गया आपका कि लास्ट एग्ज़ाम में जो भी हमारी गलतियाँ हुई है उसके और उसमें क्या लूप होल्स रह गए हैं उसे कैसे आइडेंटिफाई करना है, बिकॉज दिस इज़ व्हाट आई पर्सनली डिड। लेट्स टॉक अबाउट पेपर 2, पेपर 2 इंग्लिश, ठीक है। सबसे पहले तो ये बताओ, क्या तुम्हें इंग्लिश के 10 यूनिट्स जो पूछे जाते हैं नेट एग्ज़ाम में, जो नेट एग्ज़ाम के सिलेबस में दिए हैं, क्या आपके टिप्स पे है, क्या आपको पता है कि आप वो कौन से 10 यूनिट्स है? विच आर द 10 यूनिट्स, ठीक है। सबसे पहले क्या आता है, ड्रामा, पोइट्री, फिक्शन एंड नॉन फिक्शन, ठीक है। ये 4 यूनिट्स हो गए आपके। उसके बाद यू हैव लिंग्विस्टिक्स और लैंग्वेज, ठीक है। उसके बाद इंग्लिश इन इंडिया, लिटरेरी थ्योरी, लिटरेरी क्रिटिसिज्म, कल्चरल स्टडीज़, ठीक है, एंड रिसर्च मेथडोलॉजी, ठीक है। ये 6 फिक्शन, नॉन फिक्शन, ड्रामा, इसमें क्या आ जाता है, ब्रिटिश लिटरेचर, अमेरिकन लिटरेचर, मेजर एरियाज बता रही हूँ, ब्रिटिश लिटरेचर, अमेरिकन लिटरेचर, इंडियन लिटरेचर, ठीक है। उसके बाद आते हैं पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर, ठीक है। ये चारों लिटरेचर्स जो है 4 यूनिट्स मेजरली कवर कर लेती है, ठीक है। उसके बाद ब्रिटिश लिटरेचर सबको पता है। अब ये कभी भी मत सोच के पढ़ाई करने बैठे ना कि इंग्लिश लिटरेचर मतलब ब्रिटिश लिटरेचर होता है। बहुत कर देते हैं कि दे ओनली फोकस ऑन ब्रिटिश लिटरेचर, विच इज़ दी बिगेस्ट मिस्टेक आर इज मेकिंग सिंस लास्ट 2 अटेम्प्ट्स। हाँ, ये सबसे लेंदी होती है। इनके बाद की जो 6 यूनिट है वो इतनी क्रूशियल होती है, बट पीपल नेग्लेक्टेड। 2 बार से आई वॉज ऑल्सो मेकिंग द सेम मिस्टेक ऑफ नेग्लेक्टिंग दीज 6 मेजर एरियाज। ऑनेस्टली, इफ आई हैव टू like pin down one thing that helped me in this exam was focusing on other areas apart from British literature, क्योंकि ब्रिटिश लिटरेचर में जानने के लिए, पढ़ने के लिए इतना कुछ है कि ऑनेस्टली यू कैन नेवर स्टडी इनफ। हमें स्मार्ट अप्रोच अपनाना है, ब्रिटिश लिटरेचर तो करना ही है, लेकिन फोकस किस पे करना है आपको? सबसे पहले आपको पढ़ना है लिटरेरी क्रिटिसिज्म, ठीक है। लिटरेरी क्रिटिसिज्म पढ़ लीजिए सबसे पहले, स्टार्टिंग फ्रॉम प्लेटो, ठीक है। लिटरेरी क्रिटिसिज्म करने के बाद आपको मूव करना है लिटरेरी थ्योरी पे। पढ़ लिया यहाँ पे, एक बार तुमने प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म पढ़ लिया, ठीक है। फिर यहाँ पे साइको एनालिटिकल
क्रिटिसिज्म पढ़ लिया। ऐसे रैंडमली नहीं पढ़ना है हमको, हमको क्रोनोलॉजी के तरीके से जाना है। पहले कौन सी थ्योरी आई, ठीक है, उस थ्योरी को सपोर्ट करने के लिए कौन से थ्योरिस्ट वर्क्स लिखे। अब इस थ्योरी में कौन सी फ्लॉज थी जिसको चैलेंज करने के लिए सेकेंड थ्योरी आती है, वो थ्योरी में कौन से मेजर थ्योरिस्ट थे। नाउ इस थ्योरी को मॉडिफाई करके कौन सी थ्योरी बनी। तो ऐसे ऐसे करके क्रोनोलॉजिकली आप आगे बढ़िए, लिटरेरी थ्योरी में आसानी से सब समझ आता जाएगा, ठीक है। थ्योरी में समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हैविंग अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग। इसमें रट नहीं सकते, ब्रिटिश लिटरेचर में तो आप एक बार रट लोगे, इसमें फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग इट। तो जो एरिया फोकस करना है वो आई वुड सजेस्ट शुड बी इंग्लिश इन इंडिया, ठीक है। फोकस ऑन इंग्लिश इन इंडिया बिकॉज सी, ये एरिया जो हमारे इंग्लिश में है, ये एरिया नॉट ओनली पेपर 2 में हेल्प आएगा आपका, इस एरिया में आपको हेल्प मिलेगी इवन इन पेपर 1, ठीक है। बिकॉज आपको पेपर 1 में यू हैव 1 यूनिट टाइटल्ड हायर एजुकेशन। हायर एजुकेशन में भी यू स्टार्ट फ्रॉम मैकाउलेज मिनट, वुड्स डिस्पैच, ये सब आपके उस सेक्शन में भी आते हैं, इसमें भी आते हैं। तो ये एरिया पढ़ के कहीं ना कहीं आपके 2 यूनिट्स कवर हो रहे हैं, ठीक है। तो फोकस ऑन दैट, इंग्लिश इन इंडिया अच्छे से पढ़ लो पूरा अच्छे से। बहुत छोटा यूनिट है, आई थिंक हार्डली 2 डेज 2 to 3 डेज में ये कवर हो जाएगा। उसके बाद रिवाइज करते रहो, ठीक है, पता होना चाहिए। इसके बाद मकाउले के बाद ये आया, वुड्स डिस्पैच आया, हंटर आया, ठीक है, ये सब आपको पता होना चाहिए। उसके बाद ओके सॉरी, उसके बाद ये हो गया। उसके बाद आपको करना है रिसर्च मेथडोलॉजी। इसके लिए मैंने क्या किया, अब इसमें भी 2 फ़ायदे हैं आपके, एक टॉपिक पढ़ के 2 यूनिट्स कवर हो रहे हैं। इंग्लिश में भी रिसर्च मेथडोलॉजी है, पेपर 1 में भी रिसर्च मेथडोलॉजी है, ठीक है। ये दोनों मैंने एरिया साथ में कवर कर लिए थे। पेपर 1 से स्टार्ट किया, ठीक है। पेपर 1 में वीडियो यूनिट वाइज के हर यूनिट में क्या क्या इंपॉर्टेंट एरियाज है that you should be covering and focusing on, but now I'm just giving you a brief overview, ठीक है। I'll be making dedicated unit wise video, हर यूनिट में what you need to focus on। cultural studies is heavily influenced by Marxism। आप Marxism literary theory में कर चुके हैं, अब cultural studies आप कर लीजिए। cultural studies में मतलब मोस्ट इम्पॉर्टेंटली 4 से 5 राइटर्स है, हॉगट हो गए, स्टुअर्ट हॉल हो गए, ठीक है। इन सब के बारे में पढ़ लीजिए, थोड़ा सा सब कल्चर के बारे में पढ़ लीजिए, ठीक है। लिंग्विस्टिक्स में मेजर लिंग्विस्टिक्स के डेवलपमेंट में जो जो थ्योरी दी गई है बाय द स्कॉलर्स वो पढ़ लीजिए आप, ठीक है। तो ऐसे करके आपकी ये 6 यूनिट कवर हो जाएंगे। प्लीज़ डू नॉट कीप दीज 6 यूनिट्स फॉर जस्ट बिफोर द एग्ज़ाम। ये यूनिट आपके पैरेलली चलने चाहिए ब्रिटिश लिटरेचर, अमेरिकन लिटरेचर, इंडियन लिटरेचर, इनके साथ, ठीक है। ब्रिटिश लिटरेचर के अलावा भी आपको फोकस ऑन इंडियन लिटरेचर, अमेरिकन लिटरेचर, पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर, ठीक है। ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, इन तीनों पे हमेशा फोकस करके जाना, ठीक है। और इंडियन लिटरेचर में भी इस बार तो नहीं पूछे, बट इससे पहले दलित राइटर्स भी बहुत पूछे जा रहे थे, तो थोड़े सबसे पहला क्वेश्चन अब आपका रहेगा कि कोचिंग ले या ना ले, ठीक है। नाउ आई वुड सजेस्ट, अगर योर रिसोर्सेज अलाउ यू, ठीक है, इफ फाइनेंशियल रिस्ट्रेन नहीं है तो आई वुड सजेस्ट यू टू गो फॉर अ कोचिंग, ठीक है। बिकॉज इंग्लिश लिटरेचर में पढ़ने के लिए इतना कुछ है दैट इट इज़ वेरी ईजी फॉर यू टू बी डेविएटेड, कि एक चीज़ पढ़ रहा है, ठीक है, फिर उस चीज़ को पढ़ते पढ़ते कोई एक पर्टिकुलर टर्म आपको मिला, वो आपने गूगल किया, वो पढ़ते पढ़ते आप कहीं और निकल गया, ठीक है। छंदे हुए कौन सी कोचिंग करें, ठीक है। तो देखो, आई मेजरली स्टडी फ्रॉम
two educators. One is Vineet Pandey sir, another is ऐश्वर्या पुरी मैम. तो दोनों की अपनी कोचिंग चलती है. जो भी आपको जिनका भी टीचिंग स्टाइल बेटर लगे, बिकॉज हर एक स्टूडेंट को डिफरेंट टाइप का टीचिंग स्टाइल अपील करता है. ठीक है, तो आपको जिस भी एजुकेटर का, और भी बहुत सारे एजुकेटर्स अवेलेबल हैं. मैंने ये 2 कोचिंग एजुकेटर्स से पढ़ाई की थी. ठीक है, और मुझे बहुत हेल्पफुल लगा द वे ऑफ देयर टीचिंग. जैसे और डीएम्स आ रहे थे कब से कि मतलब टेलीग्राम पे मोस्टली कि आप प्लीज़ हमें सजेस्ट कीजिए आपने कौन सी कोचिंग ली, कोचिंग लेना चाहिए कि नहीं. था कि मैंने विनीत सर की लाइव क्लासेस ली थी. ठीक है, और क्या बोलते हैं, अड्डा वाला भी मेरे पास मेगा पैक रखा हुआ था. वो मैंने लास्ट दिसंबर को लिया था, बट मैं उस टाइम दिसंबर अटेम्प्ट में 10-15 दिन ही मैम की कोच क्लासेस देख पाई थी. मुझे ज़्यादा टाइम नहीं मिला था. एंड इस बार जो है मेरे फादर ने मेरी सर की भी कोचिंग खरीद दी थी. तो एक्चुअली मेरा प्लान नहीं था टू टेक मोर देन 1 कोचिंग, बिकॉज क्या है कि इट्स वेरी ईजी कि आप 10 जगह से पढ़ने जाओगे तो आप बहुत कंफ्यूज हो जाओगे. तो दिस इज़ नॉट आई वुड रिकमेंड. बट मेरे पापा ने वो ख़रीद लिया था, मुझे आइडिया नहीं था उस टाइम. तो इस तरीके से मेरे पास अब सर की भी कोचिंग खरीद ली थी. तो आई वाज लाइक ही इज़ अ ग्रेट एजुकेटर. अब ठीक है, मैं दोनों वीडियोज़ का स्ट्रैटेजिकली यूज़ करूँगी. तो मैंने क्या किया था कि मैं जो लाइव क्लासेस हैं वो मैं विनीत सर की अटेंड करती थी. ठीक है, विनीत सर की लाइव क्लासेस अटेंड करती थी, लाइव क्लासेस से नोट्स बनाती थी. और फिर शुरुआत में तो मैंने ट्राई किया कि लाइव क्लासेस अटेंड करूँ, और जब लाइव क्लासेस अटेंड नहीं हो पाती थी तो 2x पे वीडियो लगा के मैं सुन लेती थी. तो अगर मेरे पास ज़्यादा टाइम है तो मैं लाइव क्लासेस अटेंड कर लेती हूँ. अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप रिकॉर्डेड सेशंस अटेंड कर लो. तो उसमें क्या है, आपका टाइम थोड़ा बच जाता है जब आप 2x पे लगा के देख लेते हो वीडियो. ठीक है, तो आप ऐसे भी कर सकते हो. और ऐश्वर्या मैम के जो 8 PM के अराउंड जो सेशन होते थे. ठीक है, और उसमें मैम लिटरेरी थ्योरी वाले क्वेश्चन सॉल्व करती थी. ठीक है, यूजुअली तो मतलब लिटरेरी थ्योरी वाले मैम जो क्वेश्चन सॉल्व करती थी, या दूसरे जो क्वेश्चंस मैम जो सॉल्व करवाती थी, वो वाले क्लासेस तो मैं ज़रूर अटेंड करती थी. बिकॉज उसमें मैम बताती थी कि हमको क्वेश्चंस में से कीवर्ड कैसे फाइंड करना है. ठीक है, तो ये वाला आई थिंक यूट्यूब पे भी मैम क्लासेस लेती है. मेरे पास पेड था तो मैं उसमें से देख लेती थी. अगर पेड नहीं है, ठीक है, तो अड्डा की बहुत सारी क्लासेस ऑनलाइन भी अवेलेबल, मतलब यूट्यूब पे भी चलते हैं मैम के आई थिंक लाइव सेशन, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं जैसे भी आपको कंफर्टेबल हो. तो सर ने जो क्लास के टाइम पे मैंने बनाए थे वो नोट्स में रेफ़र करती थी. और लिंग्विस्टिक्स के जो नोट्स हैं वो मैंने ऐश्वर्या मैम वाले पढ़ लिए थे. बिकॉज ओके, ठीक है, तो ये दोनों आप कोचिंग्स रेफ़र कर सकते हैं. इसके अलावा प्लीज़ मेक श्योर टू डू योर ओन रिसर्च, योर एक्स्ट्रा रिसर्च, बिकॉज हर चीज़ आपको बना बनाया नहीं मिल सकता है. ठीक है, कोई भी कोचिंग हो, दे कैन नॉट डू दैट फॉर यू. आपको अपने एंड पे भी एक्स्ट्रा रिसर्च करनी है. जैसे कि आज मैंने एक टॉपिक पढ़ा, एक पोएट पढ़ा, एक राइटर पढ़ा. उस राइटर के बारे में मैं गूगल कर लेती थी अचीवमेंट्स. विकीपीडिया पे अगर जैसे विकीपीडिया का पेज खोल लिया तो स्टार्टिंग में उसके बारे में जो भी मेन इन्फॉर्मेशन की पॉइंट्स दिए जाते थे वो मैं एक बार देख लेती थी. उसमें से अगर मुझे पर्सनली इम्पोर्टेंट लगता था तो वो मैं अपने नोट्स में हमेशा ऐड कर लेती थी. बहुत बार ऐसा होता था कि बहुत सारे कलेक्शंस हैं, पोएट्री कलेक्शन है, हर कलेक्शन में अलग पोएट्री है, तो उसका एक टेबल बना लेती थी. तो आपको अपने लर्निंग वे को सूट करने के लिए, ठीक है, थोड़ा सा इम्प्रोवाइजेशन और थोड़ा एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा. ठीक है, देयर इज़ नो ऑल्टरनेटिव फॉर इट और नोबडी एल्स कैन डू इट फॉर यू. क्योंकि वो आपको पता है कि आपकी किस चीज़ पे नीड है. किसी एक पर्टिकुलर ऑथर के बारे में आपको और जानना है, या किसी एक पर्टिकुलर थ्योरी के बारे में आपको समझ नहीं आ रहा है, तो आप गूगल कीजिए, चैट जीपीटी से पूछिए. ठीक है, चैट जीपीटी ऑनेस्टली इट हेल्प मी वेरी मच इन माई प्रिपरेशन एंड यूज़ इट टू योर एडवांटेज. ये थ्योरी डालो, आई नीड टू know about this particular theory in a very detailed and easy way. Please break it down for me and make me understand this theory in pointers. वो आपको पॉइंट वाइज धीरे धीरे एक एक चीज़ समझाएगा. ठीक है, तो ये जो
एक्स्ट्रा वर्क है, ये आपको अपने एंड पे करना पड़ेगा, ठीक है। चैट जीपीटी को आप यूज़ कर सकते हैं किसी भी एक पर्टिकुलर नॉवल के बारे में पढ़ने के लिए, स्पेशली लाइक इससे पहले जो नॉवेल्स, हमको बहुत सारे वर्क से कैरेक्टर्स वी नीड टू रिमेंबर, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या करती थी, चैट जीपीटी में डाल देती थी कि दिस इज़ द वर्क आई वांट टू नो अबाउट, प्लीज़ गिव मी अ ब्रेक डाउन ऑफ ऑल द कैरेक्टर्स, देयर रोल्स एंड समरी ऑफ दिस वर्क, ठीक है। तो चैट जीपीटी यूज टू मेक ब्रेक इट डाउन फॉर मी, बहुत ही ज़्यादा पॉइंट वाइज, सेक्शन वाइज वो मुझे सब प्रोवाइड कर देता है। तो ये मैं अपने नोट्स में ऐड कर लेती थी, कोचिंग वाले नोट्स में। तो ये सब जो है आपकी एक्स्ट्रा वर्क है, ठीक है। ये आपको करना पड़ेगा, ये आप कर लीजिएगा। इसके अलावा कमिंग टू पेपर 1, ठीक है। पेपर 1 के लिए मैं सजेस्ट करूँगी ऑनेस्टली, कुमार भरत के वीडियोज़ आप देखिए, उनके वीडियोज़ अवेलेबल है फ्री में ऑनलाइन, ठीक है। हिज वे ऑफ टीचिंग पेपर 1 ऑनेस्टली मुझे बहुत ही ज़्यादा इट रेजोनेटेड विथ मी, मुझे बहुत ही ज़्यादा आसान लगा हाउ ही यूज टू ब्रेक डाउन एवरीथिंग फॉर यू। तो आप वो रेफ़र कर सकते हैं, फ्री में भी अवेलेबल है एंड आई थिंक उनके पेड कोर्सेज भी है, तो आप वो भी ले सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा दूसरी कोचिंग्स जो जिसके लिए अगर आप पेपर 2 जिस कोचिंग से पढ़ रहे हैं उस कोचिंग की भी पेपर 1 की क्लासेस चलती है, तो आप वो भी देख सकते हैं, ठीक है। जैसे कि अड्डा की भी चलती है, साहित्य क्लासेस की भी चलती है, तो मैं वो भी देख लेती थी। बट अगर मैं फ्री रिसोर्स के बारे में बोलूँ तो बेस्ट इज़ कुमार भरत एंड आप उनके पेड क्लासेस भी ले सकते हैं, ठीक है। तो दिस वॉज माई ऑनेस्ट टेक अवे। आता है नोट्स कैसे बनाएं, कहाँ बनाएं, ठीक है। तो देखो, नोट्स ऐसे होना चाहिए जो बहुत ही ज़्यादा लेंदी ना हो, ठीक है, बहुत ही पॉइंटर बेस्ड हो, क्योंकि आपको लास्ट मिनट रिविजन करना है, तो आप हर चीज़ के यू कैन नॉट गो थ्रू एंटायर पैराग्राफ्स एंड पैराग्राफ्स। तो नोट्स बहुत ही क्रिस्प एंड क्लियर बनाए, पॉइंटर बेस्ड बनाए। और वॉट पर्सनली वर्क्स फॉर मी और डिजिटल नोट्स, लाइक मैं फ़ोन पे टाइप कर लेती थी, पहले मैं कॉपी में लिखती थी, बट जस्ट बिकॉज मैं ट्रैवल बहुत ज़्यादा करती थी, ठीक है, आई वॉज वर्किंग, तो ट्रेन से आई यूज टू ट्रैवल। तो क्या होता था कि ट्रेन में इट वॉज़ वेरी डिफिकल्ट टू ओपन अ कॉपी डायरी बिकॉज इतनी भीड़ रहती थी। तो फिर उसके बाद मैंने फ़ोन पे नोट्स बनाना चालू कर दिए थे। फ़ोन पे आई यूज्ड टू मेक टेक डाउन नोट्स और फिर फ़ोन में डायरेक्टली स्क्रॉल कर लेती थी। और फ़ोन में एक ये फ़ायदा होता था कि आपको कुछ पॉइंट डालना है उसमें तो आसानी से यू कैन एडिट, ठीक है। तो वो थोड़ा-सा मुझे फ्लेक्सिबल लगता था, बट अकॉर्डिंग टू योर स्टाइल आप इसे वो कर सकते हैं, मॉडिफ़ाई कर सकते हैं या पेपर पेन में नोट्स ले सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा फिर जब एग्ज़ाम आने वाले थे तो रिवाइज़ करने के लिए मैं कॉपी पेन से ऑफलाइन नोट्स बनाती थी। फॉर एग्ज़ाम्पल ये नोट्स मैंने एंड में रिवाइज़ करने के लिए बनाए थे जॉन ड्राइडन पे, ठीक है। तो मेरी आदत है कि एक बार तो सारे मेजर नोट्स बना लो, उसके बाद जब रिवाइज़ करो तो नॉट फॉर एवरी राइटर, फॉर लाइक मेजर राइटर्स मैं क्रिस्प रिविजन के लिए ऐसे पॉइंटर बेस्ड नोट बना लेती थी। जैसे ये जॉन ड्राइडन है, ठीक है, आई थिंक इस पे उल्टा दिखता है, जैसे जॉन ड्राइडन है तो हर एज में मैं कौन सा वर्क लिखा है ये मैं पॉइंटर्स में लिख लेती थी, ठीक है। इसके अलावा ओके, तो ऐसे कर लेती थी मैं। सो दिस वॉज माई वे ऑफ मेकिंग नोट्स, ठीक है। पेपर 1 के लिए भी नोट्स बनाना आई थिंक इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, ठीक है। स्पेशली रिसर्च के लिए नोट्स बनाना बहुत इम्पॉर्टेंट है। रिसर्च के नोट्स बनाओ। और बाकी जैसे हायर एजुकेशन हो गया, ठीक है, उस सब का जो भी अगर पीडीएफ भी अवेलेबल है तो उससे भी पढ़ सकते हो, उसके नोट्स की ज़रूरत नहीं है। बट रिसर्च में क्या है, अलग अलग टाइप के रिसर्च होते हैं, ठीक है, अलग अलग टाइप के टेस्ट होते हैं, तो वो आप एक बार समझ लो वीडियो से या पीडीएफ से समझ लो, फिर अपनी अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे रिसर्च के नोट्स बनाओ, दैट आई वुड रिकमेंड। क्योंकि रिसर्च में इतने कॉम्प्लिकेटेड और कॉम्प्लेक्स टर्म्स आ जाते हैं दैट जब आप वापस एक बार पढ़ के हम समझ लिए, ठीक है, बट उसके बाद क्या होता है कि जब आप थोड़े दिन बाद पढ़ते हो तो वो आपको वापस से उतना ही कॉम्प्लिकेटेड लगने लग जाता है। तो व्हाट आई वुड सजेस्ट इज अंडरस्टैंड इट योरसेल्फ फर्स्ट एंड उसके बाद अपनी अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग
नोट्स बनाई हैं, ठीक है, ताकि जब आप सेकेंड रिविज़न करें, थर्ड रिविज़न करें तो आपको कुछ भी चीज़ नया या वापस से कॉम्प्लिकेटेड कॉम्प्लेक्स ना लगे। ओके, इसके बाकी जो एक एक सेक्शन है यूनिट वाइज, क्योंकि पेपर 1 में भी 10 यूनिट्स है, पेपर 2 में भी 10 यूनिट्स हैं, तो हर यूनिट में आपका फोकस क्या होना चाहिए, व्हाट आर द मेजर एरियाज दैट आई फोकस्ड ऑन एंड हेल्प मी ऑनेस्टली, वो एरियाज जो है वो मैं आई थिंक यूनिट वाइज ब्रेक डाउन करूँगी, बिकॉज ऑफ टाइम फ्रेंड्स एक ही वीडियो में सब डाल दूँगी तो इट बी वेरी कॉम्प्लिकेटेड फॉर यू टू अंडरस्टैंड। तो अभी मैं एक ब्रीफ ओवरव्यू दे रही हूँ आपके क्वेश्चंस का, उसके बाद मैं जो वीडियोस डाल दूँगी पर यूनिट वाइज वीडियोस डाल दूँगी कि ये जो यूनिट है इस यूनिट में आपको क्या फोकस करना है, यूनिट 2 में क्या फोकस करना है, व्हाट आर द मेजर एरियाज जिसके बारे में आप पढ़ ही लीजिएगा। तो ये सब जो है वो मैं एज अ स्टूडेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू मैं डाल दूँगी। वो ये आपका हो गया कोचिंग के नोट्स का हो गया। अब कैसे रिवाइज करें या कितना पढ़ना चाहिए, ये जो आपके क्वेश्चंस हैं, तो आप मिनिमम अपने स्केड्यूल से 4 से 5 या 6 घंटा आई वुड से कि आप प्लीज़ निकालने का ट्राई कीजिए, ठीक है, मिनिमम 4, 5, 6 घंटे, ठीक है, इतना निकालने का ट्राई कीजिए। और हर रोज़ पेपर 1 और पेपर 2 की तैयारी पैरेलली कीजिए। ये मत कीजिए कि आप पेपर 1 के लिए पेपर 2 को इग्नोर कर रहे हो और पेपर 2 के लिए पेपर 1 को इग्नोर कर रहे हो, ठीक है, इट वोंट हेल्प, बिकॉज जब पेपर हार्ड आता है, जब पेपर 2 हार्ड आता है, तो पेपर 1 इज़ यूजुअली मॉडरेट टू ईजी, तो पेपर 1 will save you and paper 1 is hard, paper 2 will save you of course, and paper 2 के 100 क्वेश्चंस होते हैं तो उसका वेटेज ज़्यादा होता है, ठीक है, तो यू कैन नॉट इग्नोर इट, ठीक है, ईदर ऑफ द पेपर्स पैरेलली, एटलीस्ट 1 से 2 घंटा दिन में ट्राई टू डू पेपर 1, ठीक है, एंड देन 3 घंटा एटलीस्ट ट्राई टू डू, 3 से 4 घंटे ट्राई टू फोकस ऑन पेपर 2। पेपर 2 में भी सिर्फ ब्रिटिश लिटरेचर नहीं पढ़ना है, ठीक है, मैं कभी भी सिर्फ ब्रिटिश लिटरेचर नहीं पढ़ती थी। ब्रिटिश लिटरेचर पढ़ लिया, जैसे मैं पेपर 2 के लिए 4 घंटे दे रही हूँ, मैंने 2 घंटे ब्रिटिश लिटरेचर पढ़ लिया तो मैं 2 घंटे लिटरेरी क्रिटिसिज्म पढ़ूंगी, ठीक है, बिकॉज ब्रिटिश लिटरेचर के अलावा जो ये दूसरे 6 यूनिट्स है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और यही यूनिट्स जो है दे गिव यू एच ओवर दी अदर्स, क्योंकि सब लोग ब्रिटिश लिटरेचर ही पढ़ के जा रहे हैं, मोस्टली पीपल मे बी, हाँ ठीक है, तो मोस्टली पीपल आर जस्ट गोइंग आफ्टर ब्रिटिश लिटरेचर विच इज़ नेवर सफिशिएंट, एंड आई थिंक ट्रेंड इज मूविंग टुवर्ड्स एनालिटिकल पेपर देन फैक्चुअल पेपर, ठीक है। तो अब आपको 3 मेजर यूनिट्स में बांटना है। पेपर 1 में भी अपना लूप होल आइडेंटिफाई करो, जैसे आई वॉज वीक इन मैथ्स, ठीक है, तो आई यूज टू मेक श्योर कि हर रोज़ एटलीस्ट मैं DI का एक क्वेश्चन सॉल्व कर लूँ, मतलब एक सेट लगा लूँ DI का, DI नहीं हो पा रहा तो स्पीड डिस्टेंस टाइम कर लो, कोई भी मैथ्स की एटलीस्ट, ज़्यादा मेरा भी मन नहीं करता था मैथ्स करने का, फिर भी मन मार के मैं एटलीस्ट आधा घंटा 45 मिनट्स, और कभी कभी ज़्यादा मन लग जाता था तो 1 घंटा हर रोज़ मैथ्स करने का ट्राई करती थी। तो मैथ्स अगर आपका वीक है, यूजुअली इंग्लिश बैकग्राउंड वाले लोगों का मैथ्स वीक होता है, एंड DI गिव्स यू एज ओवर द अदर्स, ठीक है, इंग्लिश में सबका मैथ्स वीक होता है, तो अगर आपका मॉडरेट भी है तो इट वुड गिव यू एज ओवर अदर एस्पिरेंट। ज़्यादा नहीं भी करने का मन है तो फॉर्मूलाज देख लो, स्पीड डिस्टेंस टाइम के, सिंपल क्वेश्चन लगा लो, ठीक है, बट टच नहीं छोड़ना है मैथ्स से। और फिर मैथ्स के साथ जो दूसरा यूनिट है, हायर एजुकेशन टीचिंग, जो भी यूनिट आपको करना है उसमें में मैथ्स के साथ वो यूनिट भी करते जाइए, ठीक है, मैं डिवाइड करनी है, या मैंने 4 पार्ट में डिवाइड की थी, आप अब मॉडिफाई कर सकते हैं अपने तरीके से। हर रोज़ मैथ्स करती थी आधे से 1 घंटे, ठीक है, सेकेंड फिर पेपर 1 में कोई दूसरा टॉपिक करती थी मैं, जैसे कि हायर एजुकेशन, एनवायरनमेंट, जो भी टॉपिक आपको सबसे ज़्यादा खतरनाक लगता है वो शुरुआत में करने का ट्राई कीजिए। फिर पेपर 2 में मैं ब्रिटिश लिटरेचर करती थी, और ब्रिटिश लिटरेचर के साथ एक 4th एरिया में कवर करती थी, जैसे ब्रिटिश लिटरेचर 2 घंटे कर लिया तो 2 घंटे फिर मैं लिटरेरी थ्योरी या लिटरेरी क्रिटिसिज्म या दूसरे जो टॉपिक्स में यूनिट्स है, पोइट्री, प्रोज, फिक्शन, नॉन फिक्शन, इसके अलावा जो 6 यूनिट्स हैं वो ब्रिटिश लिटरेचर के साथ साथ आप 6 में से कोई भी एक यूनिट पैरेलली पढ़ सकते हैं, ठीक। तो दिस वॉज अ वेरी ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ what I prepared, what was my day, and this was actually a very random video and it's not structured at all. Just because मुझे इतने सारे DMs आ रहे थे, I honestly wanted to help you out and solve your query, but
आई एम ऑनेस्टली लुकिंग फॉरवर्ड और प्लानिंग टू ब्रिंग अ मोर स्ट्रक्चर्ड वीडियो कि मैं जिसमें मैं हर एक यूनिट लेके उसे ब्रेक डाउन करूँगी कि अगर आपका यूनिट आपके 10 यूनिट है, जैसे फॉर एग्जांपल पेपर वन में, तो वो उसमें से भी 4 यूनिट ऐसे मैंने आइडेंटिफाई किए हैं। वेट आई शो यू। इस 10 यूनिट में मैंने ये देखो 4 यूनिट आइडेंटिफाई किए, ठीक है, जो मुझे बहुत हार्ड लगता है। ये जो 3 यूनिट है वो मॉडल लगते हैं। ये जो है ये मुझे रोज करना है, ठीक है। ये 5 यूनिट पे ज़्यादा फोकस करना है, तो मैंने पेपर उसके भी यूनिट्स डिवाइड किए देखिए। तो पेपर जैसे वन में जो भी 4 से 5 यूनिट है जो बहुत हार्ड है, जो आपको पहले कर लेने चाहिए। जो 4 है वो जो मॉडरेट है, या जो बाकी 1-2 है जो आपको रोज़ करने चाहिए, वो कैसा उसका ब्रेकडाउन मेरे पॉइंट ऑफ व्यू में है या कैसा होना चाहिए, वो पेपर वन का एक मैं डेडिकेटेड वीडियो पोस्ट कर दूँगी। और पेपर टू में भी ऐसे ही मैंने बनाए हैं यूनिट्स कि कौन सा यूनिट मुझे क्या एरिया लगता है वर्थ फोकसिंग ऑन। तो उसके लिए भी मैं एक और वीडियो डाल दूँगी ताकि कन्फ्यूजन ना हो, बिकॉज़ एक वीडियो में आई थिंक इट वुड बी टू मच ऑफ chaos एंड कन्फ्यूजन एंड आई वांट टू अवॉइड दैट। तो थोड़ा स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में स्टूडेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू पे किस चीज़ पे फोकस किया जा सकता है या क्या से मार्क्स मुझे लगता है कि मिलते हैं, ये सब मैं फोकस करते हुए आई soon post a video on that. You can check it out, and I would like to thank you everyone for staying till here watching this video. And only purpose was to help my fellow aspirants out, because दो attempt के बाद I दो अटैम्प्ट के बाद आई वॉज फीलिंग सेम एज यू। मैं भी बहुत क्लूलेस और ब्लैंक फील करती थी, एंड इस बार अगर मेरे पास कुछ है देने को या कुछ है हेल्प करने को लोगों की, तो मैं उसको ये वीडियो बना के थोड़ा जितना क्वेरी या जितना इन्फॉर्मेशन मैं प्रोवाइड कर सकती हूँ वो मैं करने का ट्राई कर रही थी इस वीडियो से। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे एंड विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर नेक्स्ट अटेम्प्ट।